ठीक है. By selling an article at 80% of its marking price, you don't know marking price, a merchant make a loss of 12%. So suppose CP is 100 rupees. If merchant make a loss of 12%, then price will be how much? 88 rupees. 88 rupees of CP, percent ले लो, 88% of CP, which is equivalent to 80% of marking price. In question, it is indirectly given by selling an article at 80% of its marking price. So 80% of marking price is equivalent to 88% of CP. 88%. Because it indicates that it makes a loss of 12%. What will be the percent profit? Okay, no problem. Again, you need to calculate it. 88 means what? 8 ones are 8 ones are 8 ones are 8 zeros are. Okay, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? सॉरी, MP की वैल्यू कितनी आ गई? MP, how much MP? 110. So in question, what given? What will be the percent profit or loss made by the merchant if he sell the article at 95% of its marking price? So 110 into 95 मतलब 19 by 20, और जो कि हमने कैलकुलेट किया था 104.5. तो आपसे बोलता है कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? हमें 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है. ओके, देन next question. What given in question? See, the difference between a discount of 35% and two successive discount of 20% and 20% on a certain bill was 22. What is the amount of the bill? समझा क्या? The difference between, मतलब मुझे पहले डिस्काउंट देना. मान लीजिए कोई सी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, पहले मैंने डिस्काउंट दिया. तो डिस्काउंट दिया मतलब कितना परसेंट दिया मैंने? 35% का दिया. ये नहीं देके हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट देना. मतलब पहले कुछ भी प्राइस होगी, मान लीजिए कुछ भी प्राइस है सीपी की, कुछ भी वैल्यू है, उसमें मैंने डिस्काउंट दिया है 20% का. देन उससे कुछ अमाउंट मिला होगा, उसमें अगेन मैंने डिस्काउंट दे दिया 20% का. तो सेटन बिल मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 22 रुपए. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बिल? तो पहले 35% दिया था, अब ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 400 बाय 100, मतलब कि माइनस 40 प्लस 4 कितना आ गया? माइनस 36. तो 35 की जगह मैंने कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया? अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट दे रही हूँ तो 36. So what is the difference between two percentage, two value, 35 and 36? Only 1%. And 1% of any amount is given in your question, that is 22 rupees. 22. So what is the amount of the bill? So what is the amount of the bill? That is 2200. If 1% is 22, then 100% is 22 rupees. Sorry, 2200 rupees. Okay. Then move on to the next question. Next question देखते हैं. Third question. What given here? The marking price. ये third one. The marking price of an article is 30% higher than its CP, and 20% discount is allowed on this article. Very easy question. See, CP price is 100 and marking price of an article is 30% more, then marking price is how much? 130 rupees. If you give discount of 20%, so 130 20% is how much? That is 26 rupees. 26 rupees you subtract, the resultant value is 104. So what is the percentage allowed on it? How much? That is 4%. 4% is profit percent. Okay, easy question, very easy question. Next, fourth one. Fourth question, what given here? An article is listed at 1800. Suppose ये एक article है, इसको मैंने 1800 rupees list कर दिया है, and two successive discount of 8%. पहले मैंने 8% माइनस किया इसमें, फिर उससे कुछ प्राइस मिले होगी, उसमें अगेन मैंने 8% डिस्काउंट किया.
how much would the seller gain or loss if he gives a single discount of 16% instead of 2 discount? The same question only. -16 अगर देता तो उसको कितना फायदा होता, या तो फिर वो इतना दे रहा है डिस्काउंट, तो उसको क्या लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है. ठीक है, तो पहले कितना देता था वो, सक्सेसिव डिस्काउंट देता था, नहीं सॉरी, पहले कितना देता था, 16% डिस्काउंट देता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो, सक्सेसिवली दे रहा है. जब सक्सेसिवली दे रहा है तो कितना आएगा, -8 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 8 8 जा 64, 64 बाय 100 मतलब कितना हो जाएगा, -16 प्लस 0.64, तो कितने का हुआ, -16 प्लस 0.64 मतलब -15 कितना आएगा, 46. अच्छा, किसमें फायदा हो रहा है उसको, पहले वाले में हो रहा है कि अभी वाले में हो रहा है, अभी वाले में. If he gives a single discount of 16% instead of 2 discounts, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बताइए. सक्सेसिव को प्रॉफिट हो रहा है. ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ 1 मिनट. How much would the seller gain? हाँ बोलिए. If he gives a single discount of 16% instead of 2 discount, लॉस में है कि गेन में है, सबसे पहली चीज तो ये. गेन में. नहीं लॉस में है. देखो कैसे, क्या बोल रहा है, देखो ये, हाउ मच would the seller gain or loss if he gives a single discount of 16% instead of 2 discount. जब 2 डिस्काउंट देता है तो वो कितने में बेचता है वो अपने प्रोडक्ट को, -15.46 में, लेकिन एक सिंगल डिस्काउंट में देता है तो वो कितने में देता है, 16% डिस्काउंट में देता है ना. तो किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है उसको, फर्स्ट इसमें. कैसे, अगर आप मेरे को 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, उसी जगह पे आप मेरे को 15% का डिस्काउंट दोगे, तो आप फायदे में रहोगे कि आप, सॉरी सेकंड इसमें प्रॉफिट हो, सेकंड इसमें. यस पूजा, यू आर हियर ना, हेलो पूजा, हाँ हेलो. हाँ आ रही है ना आवाज आपको, हाँ अभी आ रही है. हाँ नहीं आप अभी ये क्वेश्चन कर रही थी कि नहीं कर रही थी, अभी कर रही थी, देख रही थी. हाँ बताइए, क्या क्या होगा, किसमें फायदा हो रहा है बताओ. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितने का फायदा होगा, डिफरेंस बिटवीन 2 अमाउंट कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा. 16 में से 15.46 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, मतलब 54%, राइट. तो उस 50, अगर 1800 रुपए है तो 1% कितना होगा, 18 रुपए होगा. 50% कितना होगा, इसका मतलब 1% 18 है तो 0.50 कितना होगा, 9 होगा, है ना. और वो फायदे में है कि गेन में है, उसमें लॉस में है. ठीक है, इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट लीजिए, आप लोग बनाइएगा, बताइएगा मुझे कि फायदा में है कि गेन में है. ठीक है, ये मैंने इतना हिंट दे दिया इस क्वेश्चन का. ठीक है, आप लोग बताइएगा उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बताइएगा आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या बोल रहा है वो, बताइए, पढ़िए, रीड करिए. A shopkeeper earn a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of the CP to the printed price of the book is how much? Easy, very easy question. थोड़ा टफ में जंप करेंगे अभी, डोंट वरी, लेकिन इसका डिस्काउंट मार्किंग प्राइस का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए. अच्छा, कैसे करोगे इसको सॉल्व आप लोग, कुछ आइडिया आ रहा है क्या, आराम से बनाओ. प्रिंटेड प्राइस ले लीजिए, एज्यूम कर लो, प्रिंटेड प्राइस कितना एज्यूम करोगे, 100 रुपए. ठीक है. A shopkeeper earn a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. तो किसको एज्यूम करोगे आप, सीपी. मान लीजिए सीपी को अगर 100 रुपए एज्यूम कर लेते हैं तो उसको फायदा कितना का हो रहा है, 12% का ना, तो कितने का आ जाएगा,
112 रुपए हो गया। हम्म, फिर आपको क्या बोलता है, ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। कैसे करेंगे इसको? कुछ समझ में आ रहा है क्या? A shopkeeper earn a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. प्रिंटेड प्राइस पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। हाँ, Then a shopkeeper earn a profit of 12%. तो इसमें भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी निकालने के लिए मुझे -12 करना पड़ेगा, राइट? कितना आ जाएगा ये? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, आप लोग बोलिए कोई सा साइट, उससे अपन करते हैं क्वेश्चन। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। एसआई में प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, सीआई में प्रिंसिपल चेंज। यस, हर साल चेंज होगा। यस यस, सीआई माइनस एसआई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? सीआई कितना लग रहा है मुझे, देखो तो। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपए लगा। 420। एसआई कितना लगा 2 साल का? 400 रुपए लगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20 रुपीज का है ना? हाँ। समझा क्या? कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, ये मैं क्लियर कर दूं क्या? हाँ। चलिए, सीआई निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। हाँ, तो सीआई मैंने क्या बोला, 2000 रुपए है। टाइम पीरियड मैंने दिया है 2 साल का। और बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इजिली बनेंगे। 10%, तो आपका मैंने कितना निकाला था? 420 रुपए निकाला था 2 साल का, है ना? तो सीआई निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सक्सेसिव चेंज इन परसेंटेज होता है। ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज कितना होता है? 2 साल का 2 बार एड अप हो रहा है, चेंज हो रहा है परसेंट, +10 इंक्रीज हो रहा है, देन +10 इंक्रीज हो रहा है जो आपका एक्चुअल अमाउंट है। तो जब सक्सेसिव चेंज होता है तो क्या करते हैं, +10 +10 +100/100, ये कितना आ जाता है? 21 आया ना? 21%। Yes. तो 2000 का 21% कितना आ जाएगा? व्हाट इज 21% ऑफ 2000? 420। यस, 420 रुपए। सेम आया जो कि हमने अलग अलग कैलकुलेट किया था। तो आज से वो अलग अलग मत करना, सीधे आप क्या निकालोगे, जितने भी साल हो उसका ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसे करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना सीआई में। ओके, फिर नेक्स्ट इसी चीज को मैं अलग रेशियो मेथड से बताती हूँ आपको, थोड़ा याद रखना। हाँ, 2000 प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड है आपका 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल का, कभी कभी ये मंथली, हाफ ईयरली सब देगा आपको, ठीक है? तो प्रिंसिपल 2000 है, टाइम 2 साल है, 10% पर एनम। अब 2 साल है टाइम, मतलब 2 बार अगर कंपाउंडेड जब भी होगा तो आप 2:1 लेना। 3 टाइम्स कंपाउंडेड होगा तो आपको लेना है 3:3:1। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। 4 टाइम्स अगर कंपाउंडेड हो रहा है तो आपको लेना है 4:6:4:1। अगर 5 बार लेना है तो 5:10:10:5:1। ये याद रखो प्लीज। हाँ, कुछ याद रखने की चीज नहीं है, देखो सब जगह लास्ट में क्या है, 1 है, 1 है। 2 टाइम्स कंपाउंडेड हो रहा है तो 2 लिया है, 3 टाइम्स हो रहा है तो 3 लिया है, 4 टाइम्स हो रहा है तो 4 लिया है, 5 टाइम्स हो रहा है तो 5 लिया है, सीधा सामने में वो आपने लगा दिया है, बस कुछ नहीं है। 5:10:10 याद रखना। इसको प्लीज लिख लेना आप लोग, बहुत इजी कर देता है आपका। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चलेगा एग्जाम में, फॉर्मूला नहीं यूज करना बिल्कुल। क्या हो जाएगा ये देखो, 2 ईयर, ये 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर के लिए फॉर्मूला। नो नॉट ईयर, 2 टाइम्स कंपाउंडेड। अगर 1 साल में 6 महीने में कंपाउंडेड हो रहा है तो जब भी 2 टाइम्स कंपाउंडेड होगा तो 2:1, 3 टाइम्स होगा तो 3:3:1,
4 टाइम्स हो रहा है तो 4:6:4:1 एंड 5 टाइम्स हो रहा है तो उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, वो 10 बार का नहीं पूछेगा। शॉर्ट टाइम है तो आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए 2 टाइम्स का देख लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। 2 टाइम्स का देखो, तो 2 टाइम्स का कैसे निकालेंगे, पहले 2000 का 10% ले लो। कितना आएगा 2000 का 10%? 200 रुपए, राइट। अब 200 का 10% लो, कितना आएगा 20 रुपए आएगा। सक्सेसिवली हम उसका परसेंटेज लेते हैं, जितना परसेंट हमें गिवन रहता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2:1 लिखा है, राइट। कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ लगा दो 2:1। ये कितना आ जाएगा 400, और ये कितना आ गया 20। दोनों को एडिशन कर दो, आंसर कितना आया 420 रुपए। तो वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं यूज करिएगा प्लीज। 3 साल का कर रहे हो तो ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर आप यूज करोगे तो इससे बेटर है अगर इसी को मैं 3 साल कर देती हूँ। चलिए, तो 2000 का पहले 10% लो, कितना आया 2000 का 10%? 200 का अगेन 10% कितना आएगा 20 रुपए। 20 रुपए का अगेन 10% कितना आएगा 2 रुपए। उसका कितना पार्टीशन लेना है मुझे 3:3:1। इजी, वेरी इजी। कितना आ जाएगा 600 आ गया, 60 आ गया, और ये कितना आ गया 2 रुपीज। तो कितने जल्दी निकल गया 662 रुपीज। अगर अभी बैठे रहते हैं ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज निकालते तो बैठे ही रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज ये रेशियो को आप याद रखो, जो अभी बताया मैंने। अभी चलो क्वेश्चन करते हैं हम। याद समझ में आ गया क्या आपको कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई? एसआई इज वेरी सिंपल, प्रिंसिपल इज कांस्टेंट एवरी ईयर, but in CI principal gets change, okay? चलिए फिर देखते हैं। An amount of 3000 becomes 3600 in 4 years at SI if the rate of interest was 1% more. What was the amount? बस कुछ नहीं करना, 3000 becomes 3600 in 4 साल। मतलब कि इसमें 3000 में 600 रुपए ऐड हो गया। क्यों ऐड हुआ है 600 रुपए? क्योंकि इंटरेस्ट ऐड हो गया है, राइट। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा? अगर 4 साल का 600 रुपए है तो 1 साल का कितना होगा 600/4। हाउ मच? 600 का आधा 300, 300 का आधा 150, 150 रुपीज लग गया। तो 3000 का कितना परसेंट 150 होता है बताओ? 3000 का कितना परसेंट 150 होता है? क्योंकि ये प्रिंसिपल का ही कुछ पार्ट है। 150 रुपए कितना परसेंट है? 5। 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आता है, राइट। 5% है, मतलब रेट कितना लग रहा है 5% लग रहा है। लेकिन आपसे बोलता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1% मोर, तो 5% की जगह कितना लोगे आप 6% लोगे। तो कितना लगेगा आपका 3000 का 6% कितना होगा 1 साल का 180 रुपए। 180 रुपए, ठीक है। 4 साल का कितना हो जाएगा 720। तो मतलब आंसर कितना आ गया 3720। समझा क्या? इजी था कि टफ था? थोड़ा सा। हाँ, वो मेरा मोबाइल हैंग हो गया था ना इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। चलिए 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14th क्वेश्चन, द एसआई accrued on an amount of 10,000 at the end of 2 years is same as the CI on 8,000 at the end of 2 years. The rate of interest is same in both the cases. What is the rate of interest? तो देखो कुछ नहीं है आपका ये क्वेश्चन, जो बोल रहा है बस वही काम करते जाओ। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, आप अपना हेडफोन हटा दीजिए। नहीं, मेरा नहीं, मुझे डिस्टरबेंस आ रहा है। पता नहीं कैसे आ रहा है। तो हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक आया, किसी का तो हो रहा था। तो ठीक है, देखो SI accrued on an amount of 10,000 at the end of 2 years is same as the CI on 8,000। मतलब कि क्या बोल रहा है, देखो क्या बोलना क्या चाह रहा है वो। सिंपल इंटरेस्ट है सम अमाउंट, कुछ अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट 10,000 रुपए एंड बुझे सेकंड ईयर। मतलब कि SI for 2 years is equal to CI for 2 years, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। पढ़ो
the simple interest accrued on an amount of 10,000 at the end of 2 years is same as the CI on rupees 8,000 at the end of 2 years. यही बोल रहा है, जितना ऐसा है 2 साल का लगता है उतना ही CI 2 साल का लग रहा है. उसको डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ. हेलो हेलो हेलो. हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ. ठीक है. अपना हेडफोन निकाल लीजिए मोबाइल है ना. अभी ठीक हुआ फिर. हेलो आ रही है आवाज? हेलो. दोनों को आ रही है? हाँ ठीक है. तो बस कुछ नहीं करना. देखो इंटरेस्ट क्या होता है आप लोग जानते हो, P इंटू R इंटू टी ऐसा है. लेकिन CI 2 साल का कितना होगा अभी बताया था मैंने, ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज, राइट? x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 ये होता है ना. 2 साल का सेम ओवरऑल चेंज, सक्सेसिव चेंज इन परसेंटेज प्रिंसिपल का. प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 10,000 है, ऐसा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं पता. टाइम कितना दिया है? 2 साल दिया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ले लो आप, सपोज कुछ ले लो, x ले लो, है ना. कितना आ जाएगा बताइए? इसका 8,000 है प्रिंसिपल, उसका कुछ परसेंट लग रहा है. कितना परसेंट लग रहा है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100. बस कुछ नहीं करना, कट कर दो जल्दी से. 1 2 3 1 2 3 2 4 जा 2 5 जा 10. कितना आ गया? 4 बाय 4 5 2 जा 10. 10x बराबर 4 2 जा 8x 4x स्क्वायर बाय 100. 10x माइनस 8x कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाय 100. x x कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 250 जा. x की वैल्यू कितनी आ गई? 50%. मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 4th. समझा क्या? x की वैल्यू कितनी आ गई? 50%. आप लोगों को समझा क्या? कुछ नहीं किया है मैंने, जो दिया था बस वही काम किया है. इंटरेस्ट क्या होता है? SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू CI फॉर 2 इयर्स. तो 2 साल का CI है ना प्रिंसिपल. फिर ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज निकालो. रेट x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100. 2 साल का. अभी कुछ नहीं पता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो आप x ऐसा है. 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है? 10,000. इसका भी प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है. बस इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा. ठीक है. हाँ. इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या इसका? यही है शॉर्टकट, यही है इसका शॉर्टकट, है ना. अभी आपको करने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट इजी है ये, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? हाँ नेक्स्ट क्या बोल रहा है बताइए. कौन सा पढ़ रहे हो आप लोग क्वेश्चन? चलिए 21 करिए जल्दी से. 2 मिनट बचा है इसलिए मैं बोल रही हूँ. 21 जल्दी से कर दीजिए. हाँ क्या बोल रहा है 21? A sum of 4,800 is invested at CI for 3 years. The rate of interest being 10% per annum, 20% per annum, 25% per annum for the first, second, and third year. Find the interest received at the end of 3 years. Tell me answer. कैसे होगा? कुछ हिंट आ रहा है क्या आपको? यस. क्या करोगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 आ गया. सेकंड 20 40 3 मल्टीप्लाई बाय 25 75. पूरा टोटल आएगा 105. हाँ 4800 इज इक्वल टू. आंसर कितना आ रहा है? आगे अटक गया. नहीं कैसे करोगे? देखो ना. A sum of 4,800 is invested at CI for 3 years. The rate of interest being पहले साल का CI का 10% लगता है, दूसरे साल का 20%, तीसरे साल का 25%. CI है ये, SI नहीं है. ठीक है. तो आपने SI निकाला है कि CI निकाला है?
सक्सेसिव चेंज इन परसेंटेज निकाल लो सीधे, 10 20 200/100 ये निकाल लिया आपने, कितना आ जाएगा? 32% आ गया। फिर तीसरे साल का 25% है तो 32 + 25, 32 × 25/100 हाउ मच? 25 1 and 25 4 4 8 25 8 33 33 और 32 कितना आ जाता है? 65। 65% of 4800 is your answer. Find fast. 65 कैसे निकालोगे? 13/20 into 4800, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 240 कितना आ जाता है? 24 × 13, 4 3 12, 12 मतलब कितना आ रहा है? 240 और 72। 3120 is your answer. Second option. 3120. कैलकुलेशन फास्ट प्लीज, फॉर बैंक वेरी इंपॉर्टेंट। और कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो रहा है? फ्रैक्शन से, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 13th बनाइए जल्दी से। क्या बोल रहा है 13th क्वेश्चन?